Okay, so last time we started with डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. तो मैंने अलग अलग मॉडल्स आपको बताए थे. उसमें वन ऑफ द मॉडल वाज DCF मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो. और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में भी दो तरह के होते हैं. वन इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अनदर इज फ्री कैश फ्लो. So we started actually with dividend discount model, and as per this model, present value of all the dividend should be the current market price of the company. That was the thing it suggests. The first one, under which was zero growth model, less important for exam, but इसमें कुछ है भी नहीं. It is like perpetuity equation only. So it is dividend at the end of the year divided by required rate of return. Second, constant growth model. Constant growth model is asked more in exam, which says D1 divided by KE minus G or R minus G. R or KE is equal to required rate of return from equity shares. अच्छा, there is one more thing which I would like to highlight. हमें वो CAPM theory सब कुछ पढ़नी है in detail, because level 2 में theoretical testing means जो concept हम जानते हैं उसका काफी ज्यादा रहता है. So like Markowitz model सब हमें डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, because उसकी theory एग्जाम में होती है. Okay, so यहाँ पर एक KE का basic equation हमारे पास है, that is based on CAPM, capital asset pricing model, that is RF plus beta into RM minus F. Right? This is much more known equation to all of us. ठीक है ना? So this is the equation to find out KE. Data हमें straight दिया जाता है. Okay. And उसके बाद probably did we do two-stage model last time? यश बताओ तो. लास्ट टाइम भी शायद नहीं किया था ना. हाँ चलो, तो लास्ट टाइम हमने मोस्टली कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल पे काम किया होगा. प्रिज्यूमिंग वी डिडंट डू टू स्टेज डिविडेंड मॉडल, तो उसी से शुरू करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विथ टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. नाउ व्हाट इज द इंटरेस्टिंग assumption इन दिस मॉडल, कि अगर मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊं, तो इट सेज दैट कि for some initial number of years your growth rate is going to be higher. So first जो part है उसको हम super normal बताते हैं, and part which is a long term growth rate, that is called perpetual growth rate. These are the two stages. Say for example इसको हम 15% लेते हैं, and another part let us assume at 5%. So what has been suggested here, say initial 3 years, the growth rate of dividends, we are not talking about earning essentially, but growth rate of dividend is 15% for 3 years, and then it grows at 5% perpetually. अब ये मॉडल का एक बहुत इंटरेस्टिंग assumption भी है. All these dividend discount model which we see have an assumption that growth rate in earning of the company is well reflected in the dividend of the company. So there is a synchronizing effect. ऐसी बात हम नहीं कर रहे कि कंपनी का डिविडेंड ग्रो हो रहा है भले ही कंपनी की अर्निंग बढ़े ना बढ़े. That's not the case we are discussing. We are simply understanding the fact there is a growth in earning. That has been the reason there is a growth in dividend. इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके फिर इसके कुछ assumptions, critical assumptions भी हम लेते हैं. So D0, say for example, is 10. Say growth rate, जो higher growth rate की बात कर रहे हैं, so that is equal to 15% for n is equal to 3. And growth rate जो lower की हम बात कर रहे हैं या perpetual है, that is 5% for infinite period. You being an investor require 12% from the shares of the company
how much you should be ready to pay to buy the shares of the company. That's the question, right? So what should be the, or how much should be the price of the company? इसको फटाफट फटाफट हम टाइमलाइन पे लेते हैं. So we have to find out at zero. मुझे बताओ year 1 के end का dividend कितना होगा? If it is 10 rupees right now, growing at 15%, how much is dividend at the end of year 1? 11.5. That is 11.5. Okay. Then how much is dividend at the end of year 2? 13.225. Then how much is it at the end of third year? 15.2087. Okay, so this have been the dividends for initial 3 years. बहुत ध्यान से, because भले ही basic concept हो, it is a tested topic in exam. So this have been the dividends for initial 3 years. अब जो हमारा dividend है from 4th year, it is going to grow with infinite rate. That is 5%. Tell me. The amount of dividend. 15.9691. Okay, so this have been the dividends on the timeline. Move further. अब ये जो हमारे पास 4th year का dividend है, that is going to grow at the rate of 5% for infinite period. So it's a perpetuity, growing perpetuity. तो अगर मैं कुछ ऐसा equation रखता हूँ, because I know कि how do I find out present value of growing perpetuity? So it is cash flow at the end of year 1 divided by R minus G. ये TVM का formula है. This is typically TVM formula, that is to find out present value of growing perpetuity. Now the same formula हमने constant growth में use किया था, क्योंकि अब तो ये dividend है या जो भी है, मेरे लिए तो typical timeline पे ही question आ गया. So let me do this way. थोड़ा इसको refine करके रखते हैं यहाँ पर. So D4 divided by KE minus G, that is equal to present value at the end of which year? 0 or 3? 3. It is present value at the end of year 3. So 4th year के dividend की अगर मैं perpetual growth rate वाली formula से present value ढूंढता हूँ, so present value should be at the end of year 3. चलो, so let's plug in all these numbers. 15.96 divided by 0.12 minus 0.05. Tell me, how much is it? 228.1312. 228.13. ठीक है. अब इसमें एक क्लासिकल क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपको पूछता हूँ. 228.13, that's the present value of all the dividends from 4th year onwards. Does it include 15.96 in it? Yes, sir. It includes. It includes. So Hiren bhai says it includes. Chinmay bhai, what is your opinion here? नहीं सर, नहीं इंक्लूड नहीं होगा शायद सर. Include नहीं होगा. Kunal bhai? Sir, include. Include. Yes. Sir, नहीं होगा. इंक्लूड नहीं होगा सर. Include नहीं होगा. Okay. Muktiraj bhai? Sir, it include. It includes. And Dakshesh, to you? Sir, include. Includes. So अब majority पे ही हम जाते हैं. It certainly includes. क्यों? क्योंकि मैंने 15.96 को ही लेके तो present value ढूंढी है. So this is the present value of all the dividends which are going to be paid 4th year onwards. तो ये 15.96 की भी present value मैंने ढूंढ ली है इसमें.
सो इट इंक्लूड्स, तो अब मुझे फर्दर कंप्यूटेशन में 15.96 को लेने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्लियर हुआ? सो ये याद रखना है, बिकॉज आई हैव टेकन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फोर्थ ईयर भी उसमें आ ही गया है इन दिस फॉर्मूला एंड इन दिस कंप्यूटेशन। सो 228.13 includes 15.96, करेक्ट? चलो, तो अब हमारे लिए काम रिलेटिवली आसान हो गया। अब क्या करेंगे? वी हैव टू यूज द कैश फ्लो, एंड कैश फ्लो में आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लो एट द रेट ऑफ 12%। राइट, 194. हाँ, अभी आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उस पर आप सॉल्व करिए। चिन्मय भाई, विच कैलकुलेटर डू यू हैव? नहीं प्रशांत भाई, आई डोंट हैव कैलकुलेटर, मुझे बाय करना है। अच्छा। मतलब नॉर्मली आई हैव लर्नड ऑन एक्सेल। अच्छा, करेक्ट करेक्ट, तो अभी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यस, तो अभी आप जो भी मेथड से प्रेजेंट वैल्यू ढूंढते हो ढूंढ लो। ठीक है। वंस एवरीबडी हैज कैलकुलेटर, क्योंकि अभी क्या, मेरे स्टूडेंट्स जो है उनके पास टेक्सास का इंस्ट्रूमेंट होगा सीएफपी में, बट नाउ वी हैव टू यूज केशियो। सो केशियो जब सबके पास आ जाए तो फिर मैं आपको केशियो पे भी कैसे करते वो सिखाऊंगा। अगर कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, सिर्फ पंचिंग में थोड़ा मोटा डिफरेंस आएगा। राइट, सो अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लो। सर कैशियो में कौन सा बाय करना है वो भी आप ग्रुप में रख देना ना। हाँ, मैं मॉडल अब भी रख देता हूँ, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो, मैं भूल जाऊँ उससे पहले रख देता हूँ। So we are getting answer to be 194. So is it the common answer with all of us? સર મારે 176 આવે છે. Sorry? 176 આવે છે. Have you added 15.20 into this? So my third period cash flow is actually total of this two. That is 15.20 plus 228.13. करो तो चलो 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 चलो। We start with 3-stage DDM, और इसके काफी क्वेश्चंस मैं आपको फिर से प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। यश, आपके पास भी कुछ स्पेसिफिक स्पेशल मटेरियल हो तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास भी है। आई विल शेयर विथ यू, यू आल्सो शेयर विथ मी, विल क्रॉस चेक कि इफ समथिंग एक्स्ट्रा तो हम देख लेते हैं, है ना? Yes, sir. ओके, 3-stage डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वर्क्स दिस वे, टिपिकल 3-stage, और फिर हम कुछ सीखना है, दैट इज द एच मॉडल। Typical H model says, 3-stage model says that कि you start with supernormal growth rate for several years. उसके बाद आपका growth rate एक moderate range में रहेगा, and then post that it is going to be the same perpetual. यही क्वेश्चन को हम डिफाइन करते हैं. Say for example 15% for initial 3 years, 10% for further 3 years. That means we are at the end of 6th year, and then infinite period. Okay, we still work on the identical data. Say current dividend is equal to 10. Growth rates the way I have narrated. Required rate of return here once again is 12%. Let us find out price of equity share. अब मैं इसको एक टाइमलाइन पे ले लेता हूँ, so that things Sir, become related. આ બધા જે ક્વેશ્ચન્સ છે સર કેશ ફ્લો થી જ તો સર. Yes.
0. And now how much is my D1? It is same. It is 11.5. 2. Sir, 13.22. 13.25. Then 15.20. D4 से मेरा ग्रोथ रेट चेंज. I am on to now 10%. So 16.72. 18.39. 20.23. And sir, third का ग्रोथ क्या है? Last 5%. 5%. 21.24. ठीक है. देन ग्रो फॉर इनफाइनाइट पीरियड. तो ये हमारी टाइमलाइन हुई. बाकी सबकी तो हम प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मली एनपी के थ्रू ढूंढ पाएंगे. D7 divided by K minus G. D7 divided by KE minus G. So that is equal to 21.24 divided by 0.12 minus 0.05. Tell me. Sir, 303.42. So this is यहाँ पर प्लस हो जाएगा. This is not to be considered anymore because 21.2 is by default part of 303.42. So it is 303.42. That is the total cash flow of 6. Now find out NPV of everything at the rate of 12%. Sir, 216. That is equal to, so PV or say price of the share is equal to 216. Okay. Now इसमें और एक डाउट आ रहा है. सिर्फ एक डाउट है सर. ये हमने ऐड क्यों किया है सर इसके अंदर 21.24 क्यों? वो तो इनफिनिट हो गया, बट हमने 6 में ऐड करके किया है वो सर. हाँ, उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि जो 21.24 हमारे पास था, लाइक तो 7th ईयर ऑनवर्ड्स जो भी डिविडेंड हमको मिलने वाले थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू 303 है. करेक्ट? यस सर. बट 6th ईयर का भी तो एक डिविडेंड मिलेगा ना हमें एट द एंड ऑफ 6th ईयर. सो ये एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 7th ईयर ऑनवर्ड्स डिविडेंड है और 6th ईयर का भी अपने आप में डिविडेंड तो है. सो इसीलिए मुझे टोटल करना पड़ेगा ये दोनों का. इंक्लूडिंग होता है. टोटल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 6th ईयर. ठीक है. अच्छा, अब यही केस में if I say that current market price of equity share is 240. चलो, tell me whether the share is undervalued or overvalued. Undervalued. ओवरवैल्यूड है सर. 216 प्राइस होना चाहिए, 240 है. It is overvalued. Is I this clear to all? Yes sir, मैं 216 मैंने मार्केट वैल्यू. हाँ, ये आपने उल्टा समझ लिया हाँ, इसलिए. ओके. या क्लियर तो अंडरवैल्यूएशन ओवरवैल्यूएशन पार्ट. ठीक है. Yes, अब sir. हम शुरू करते हैं with one more model that is very important. That is H model. पता नहीं सबकी एग्जाम में ये क्यों नहीं आता है, बट मेरी एग्जाम में तो आता है. Right, so I get all the easy questions in my exam most of the times. Dakshesh, did you have H model in your exam? No, sir. No. यश को मिला No, एक भी बार H model? नहीं सर, मुझे भी नहीं मिला. मैंने एक बार ही दिया था खैर एग्जाम, तो नहीं नहीं, मिला. L1 में
L1 में नहीं सर, L1 was very easy for me, पूरा theoretical आया था, पूरा theoretical CFP का, तो बहुत easily निकल गया। निकल गया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी है जो इजी है, आसान है, वो मुझे हर बार मिलती है एग्जाम में। लाइक इंश्योरेंस में एक मेथड हम सीखेंगे इस बार, वंस अगेन वी हैव टू रिवाइज, दैट इज बेल्थ मेथड, जो अपने सीएफपी में नहीं आती है पढ़ने में, राइट। तो वो भी किसी को मिलती नहीं है नॉर्मली, मुझे मिलती है एग्जाम में। चलो फिलहाल इसको लेते हैं, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसको तो आप करोगे ही करोगे, बिकॉज दिस वाजंट देयर इन सीएफपी, इट इज देयर इन दिस करिकुलम एक्सक्लूसिवली। सो दिस इज एच मॉडल। एच मॉडल simply says कि यहाँ पर what is now to be criticized, so something to be criticized here is कि ये जो sudden fall हो रहा है, देखो टू स्टेज से ही ये प्रॉब्लम चल रहा है कि there was a supernormal growth rate of 15% and all of a sudden ये जो jerk आया ना 15 से 5% का, ये प्रैक्टिकल नहीं है, right? For initial years it is growing at 15% and then it falls to 5% all of a sudden। तो ये जो जर्क है वो प्रैक्टिकल भी नहीं है और मार्केट में नहीं है, so it doesn't fall this way। तो ये मॉडल, like I read one of my favorite authors book, that is Ashwath Damodaran, so he exclusively said कि ये मॉडल, see models haven't wrong, but कौन सी कंपनी पे अप्लाई हो सकता है, so this can be applied to those companies which are having patent or say copyrights, that means those companies which do have some exclusivity in their business and they are alone for some time, and as soon as their exclusivity period is coming to end, there will be competition and they will grow at a normal rate. So this is not widely applicable to most companies, it is only to limited number of companies. Then we move further with three-stage model. So three-stage model is also suffering from the same ideology। यहाँ पर तीन ग्रोथ है, बट ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि लाइक इट विल ग्रो at 15% for certain period, then further period is 10 and then once again infinite के जो limitations है वो तो रहने ही वाले हैं। So ऐसा नहीं होता है। However, this is widely applicable because when company is small, it grows at a faster pace, then company becomes like bigger, growth rate उसका कम होते जाता है। That effect is known as base effect। ये पता है किसी को ये बेस इफेक्ट क्या होती है? सर आपने सिखाया था। हाँ मैंने बताया था, ये थ्री स्टेज में ही बताया होगा। सेल गाइड यू, उसको मैं अलग पेज पे लेता हूँ बिकॉज जब ये इमेज शेयर करूंगा ना तो ये बेस इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ आपको थोड़ा गड़बड़ी में डाल देगा। सो बिफोर वी स्टार्ट विद एच मॉडल, हम बेस इफेक्ट समझ लेते हैं। बेस इफेक्ट, सो कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ रेट है कंपनी का, लाइक इट कंपनी ग्रोज एट अ फास्टर पेस इनिशियली, मींस इस तरह से ग्रो के फिर कम होने लगता है, ग्रोथ रेट कम होने लगता है। सो लाइफ साइकिल बेस पे ये चलता है। सो आई लेट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस इफेक्ट। सो ईयर वन, से फॉर एग्जांपल कंपनी, जो हम हमारा टिपिकल एग्जांपल है वही लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ 100, ईयर टू प्रॉफिट इज 200, तो परसेंटेज ग्रोथ कितना आया? 100%, isn't it? अब ईयर 3 में इट हैज इंक्रीज्ड टू 350। अब देखो एब्सोल्यूट यहाँ से यहाँ चेंज कितना था? 100। एब्सोल्यूट सेकंड में चेंज कितना है? 150। बट टेल मी द परसेंटेज ग्रोथ रेट। 75। So it is growing at a decreasing rate. Okay. राइट। अब फोर्थ ईयर में हम लेते हैं उसको से 5 एब्सोल्यूट इज 170। तो परसेंटेज ग्रोथ बताओ कितना आया? 50%। 50%? 50, 50। Okay. So some
वेरी इंटरेस्टिंग कि ये अमाउंट्स तो बढ़ती जा रही है, तो ये ग्रोथ रेट क्यों कम होते जा रहा है? व्हाई इज इट फॉलिंग डाउन? सर क्योंकि इसका बेस बढ़ रहा है। Yes. So whenever we see like big companies like ITC and all, ये already बड़े बेस पे पहुंच चुके हैं, right? So for them, growing further is like beating that base, and every year attaining the same growth rate is also difficult. Means अगर कोई कंपनी बताए 100 का ग्रोथ रेट चालू ही रहना है, तो 100 से 200 आसान है, बट 200 से 400 उतना आसान नहीं है, 400 से 800 और भी आसान नहीं है. So these are with time, with the growth of the company, the base. पहली कैलकुलेशन में बेस हमारा 100 था, फिर 100 से 200 हो गया, फिर 350, 525. So ये समथिंग इंटरेस्टिंग है. और बेस इफेक्ट सबसे ज्यादा हमें देखने मिलती है वंस इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड. इन्फ्लेशन में यही होता है, कभी इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर कम होता है, बढ़ता है, कम होता है. बेस इफेक्ट उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. आईटीसी का एक मैंने अभी नाम ले लिया तो उससे मुझे बहुत इंटरेस्ट याद आ गई. इन दिस मॉड्यूल नेक्स्ट क्लास से मैं आपको पीडीएफ पढ़ाऊंगा, जो हमारी टेक्स्ट में मेरी पीपीटीज है उसको मर्ज करके पढ़ाऊंगा. टेक्स्ट बुक की पीडीएफ में आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उसमें से भी हम पढ़ेंगे. सो वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड हेज फंड्स, और उसकी सब नहीं बट कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज हम पढ़ेंगे, बिकॉज आवर करिकुलम इज लाइक उन्होंने पूरा जितनी भी चीजें पॉसिबल थी बुक में छाप दी है. whatever is possible they have printed everything in our books. तो हम limited number of strategies hedge fund की पढ़ेंगे. One of the strategy अभी से सिखा देता हूँ because I just recollected the name of ITC. So let's move further. That is called a demerger arbitrage. So recently market में एक न्यूज चला है ITC के बारे में. बताओ क्या है? ये वीक से ही न्यूज चला है, बताओ व्हाट इज इट? सर वो सीक्रेट बिजनेस कुछ वो अलग करने वाला है सर, कुछ ये पढ़ा था. कोटक में क्या न्यूज है? हम सब कंपनी अलग अलग न्यूज. सर कोटक में तो सिर्फ इंश्योरेंस चल रहा है पिछले 1 महीने से. अच्छा, टारगेट अभी तो सिर्फ ऐसा है, इंश्योरेंस करो बाकी सब भूल जाओ. अच्छा, मार्च एंडिंग हो रही है ना सर सभी फाइनेंशियल्स की, तो मेजर उनको रेवेन्यू इंश्योरेंस से कलेक्ट करना है. अपने बैच में आधे लोग तो बैंकर है. जिनमें पे व्हाट डू यू डू? आई हाँ, मैं आई एम टू आईसीसी प्रूडेंशियल. एक्चुअल में आईटीसी का ये न्यूज पढ़ा, गूगल भी करिएगा आपको मिलेगा. अलग अलग बातें हैं, बट मोस्टली दे आर गोइंग टू डिवाइड द एंटायर कंपनी into 3 companies, and it is, if this happens, it has been said that it is going to be the biggest corporate event of our country. अगर ITC डीमर्ज होती है, all things they are going to demerge, तो सबसे पहला उनका होटल बिजनेस डीमर्ज होगा सेपरेट कंपनी में. Another, as they say, FMCG, and third, I read it, I'm not very sure, but it was Infotech. आईटीसी इन्फोटेक. हाँ, सो 3 बिजनेस वो लोग आई थिंक सेग्रीगेट करने के प्लानिंग में. नाउ लेट्स सी अनाउंसमेंट कम. सर ये व्हील्स लाइफस्टाइल भी उसी का है ना? हाँ हाँ, व्हील्स तो उनका वो फेवरेट FMCG ब्रांड है. तो वो एफएमसीजी में जाएगा सर. सीक्रेट बिजनेस भी एफएमसीजी में ही जाएगा. एफएमसीजी में ही जाएगा, बिकॉज आईटीसी को अगर मुझे स्प्लिट करना हो तो कम से कम 10 कंपनी बनानी पड़े, 3 में नहीं हो सकता है. हाँ, because FMCG, tobacco, then retail, then packaging. अब पैकेजिंग कंपनी में हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज कॉल्ड हुतामाकी PPL, दैट इज पेपर प्रोडक्ट्स. तो सिमिलरली पैकेजिंग बिजनेस आईटीसी का भी है. अब वो हुतामाकी की खुद की प्राइस 300 रुपए अभी, और आईटीसी का भी पैकिंग यूनिट है विच इज बिगर देन दैट, तो इसका भी प्राइस ऐसा होना ही, मिलना ही चाहिए ना वैल्यूएशन. तो सर इन्फोटेक कौन सा है उसका? मैंने नहीं पढ़ा शायद, ये आइडिया नहीं. ये मैंने पढ़ा डिटेल में, मुझे भी पता नहीं है. आईटीसी इज डूइंग मैनी थिंग्स, वो सस्पेंस ही है कि वो क्या कर रहे हैं.
बट ऐसा कुछ है कि इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 कंपनीज। अब ऐसा क्यों कर रहे वो लोग? उनको सिगरेट की वजह से बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, आई थिंक, तो वो दूसरे बिजनेस भी अफेक्ट कर रहे हैं। एंड यस, इसको हम बताते हैं मोस्टली वैल्यू अनलॉकिंग। इज अच्छा। वैल्यू अनलॉकिंग। तो अभी क्या टोटल शेयर की प्राइस 205 थी, 205 से अभी 225 पहुंच गई, बट स्टिल लाइक इफ दिस हैपेंस, लाइक इट हैज बीन मार्केट परसेप्शन कि अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक इन अ ईयर और सो थिंग्स विल डबल, पैसे आपके डबल हो जाएंगे। और एफएमसीजी जो उनका सबसे सॉलिड विजन है, दैट शुड फेच मेजर वैल्यू, बिकॉज हो क्या रहा है कि एफएमसीजी में जो कमा रहा है प्रॉब्ली बाकी सब बिजनेस कहीं ना कहीं डूबा रहा है। तो सेग्रीगेट होने से तो वैल्यूएशन में बहुत फर्क पड़ेगा, एंड दे विल बी एबल टू अनलॉक ह्यूज वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स। ये एक कॉन्सेप्ट है। सर तो ये So this can डीमर्जर happen. होगा। So what is demerger arbitrage? Is that you buy the हाँ, बोलो बोलो कुणाल भाई। I'm listening. डीमर्जर होगा तो सर प्रोपोर्शनेट शेयर्स मिलेंगे ये सबके। वो अभी देखते हैं कि हाउ थिंग्स गो, बिकॉज वो स्कीम अभी आई नहीं है। So how are they going to give the shares of different companies? That we'll have to see. बट But still, अल्टीमेटली सर बिजनेस पे भी फोकस बढ़ जाएगा ना इनका। टाटा ग्रुप जो है वो कंसोलिडेशन में है कि बहुत ही डाइवर्स है, तो उसको इकट्ठा करते हैं वो लोग, एंड ITC is now in demerger. Now similar thing would also happen with Reliance sooner or later. हाँ सर, वो जियो मार्ट फिर वो रिलायंस वो अलग अलग हो जाएगा। रिलायंस के 3 कंपनी तो परफेक्टली बनते हैं, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम एंड रिलायंस टेक्नोलॉजीज। जो जियो वीओ उसमें आ जाएगा, टेलीकॉम, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम करेंगे। तो ये एक डीमर्जर आर्बिट्राज है। You buy it and hold it for some time, take the benefit, value unlocking मिलने से you can make an exit. And this you would see. So अगर ये news confirm है, you will see further rise in share price of ITC, and further rise will confirm कि yes, things are happening. So this is demerger arbitrage. ये मैंने आपको सिखा दिया एडवांस में। Is hedge fund strategy. अब हम आगे बढ़ते हैं with the model called H model. Now H model is typically कई बार कुछ किताबों में 2 स्टेज रखते हैं, कई बार 3 स्टेज रखते हैं। So I'll draw for you कि इसमें क्या नया है। Now H model says कि इनिशियल पीरियड में जो आपका ग्रोथ रेट है, जो हाई ग्रोथ रेट है, हाई ग्रोथ रेट विल linearly decline for several years and then it will become constant. It is very important. So it is linearly going to decline for several years. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बेटर पार्ट क्या हो गया कि वो 15% से 10% was a challenge, but now it says it is going to linearly decline. तो say for example यहाँ पर 20% है और यहाँ पर 10% होने वाला है over a period of 5 years. Over a period of 5 years. So now I can understand when I'm talking about linear growth, so how growth is going to fall. So that is going to be 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, and finally 10. So this is what we understand to be the linear declining growth rate. So ये थोड़ा लॉजिकल साउंड करता है। धीरे धीरे ग्रोथ रेट कम होगा ना, कम नहीं होगा। So this is how this model like proves logic. And then it is going to be perpetually infinite. So ये भी यहाँ तक सिखाया clear? Is this understand? तो ये भी सिखाया था।
मैं बोल रहा CFP था में नहीं हो सर, ये सकता भी ये। सिखा, हाँ सर सिखाया था, सीखा था, क्या बात है। हाँ आई मैं रिकलेक्ट। क्या सिखाते रहता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस भी सिखाते रहता हूँ ऐसा है। नहीं, ये डिविडेंड अब डिस्काउंट ये बोलकर नहीं मॉडल, सर ये डिस्कशन हुआ। सर नहीं, आपने ऐसा बोला था कि दामोदरन गिव दिस थियरी, ये मॉडल नहीं सिखाया था। मतलब ये अच्छा। ऐसा या मैंने सर आपका वो जो सीएफपी का वीडियो है ना, इसमें कहीं देखा है, ये पक्का देखा नहीं आप, हाँ ये आपने बोला था कि अश्वत्थ दामोदरन वो मॉडल नहीं वो करता, ये मॉडल उसका है, ऐसा कुछ बोला था आपने, ऐसा कुछ बोला था। राइट। ओके, चलो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू वैल्यू दिस। अब ये शेयर को वैल्यू कैसे किया जाए, तो कुछ डेटा और भी ऐड करते हैं यहाँ पर। तो इसको पहले मैं लाइन को जोड़ देता हूँ एंड लेट मी इंट्रोड्यूस द डेटा। सो फर्स्ट से D0 दैट इज द करंट डिविडेंड इज 10। ग्रोथ रेट मैंने आपको दिया है, सो ग्रोथ रेट हाई इज इक्वल टू 20 एंड ग्रोथ रेट लो इज इक्वल टू 10%। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स वी कीप 12% एज इट्स। ठीक है, एंड पीरियड जो हमारे पास है हाई ग्रोथ पीरियड, सो इसको हम ट्रांजिशन भी बताते हैं। सो ट्रांजिशन पीरियड is equal to 5 years. That's the data with us. And we have to value share of the company. So सबसे पहले, like to start with, let us value the share. दो रीजन में इसको हम वैल्यू करेंगे। So I'll find out first part में value of this region, जो नीचे वाला रीजन है उसका वैल्यूएशन पहले कर लेंगे। चलो, तो ये तो कांस्टेंट ही बता रहा है ना, दिस रीजन इज टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ओके, सो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, D0 into 1 plus growth rate long term divided by KE minus growth rate long term. This equation is as good as the constant growth model, है कि नहीं? So मैंने ये नीचे का रीजन जो है उसे वैल्यूएशन में ले लिया। अब और भी तो एक सेक्शन बाकी है ना इसमें, ये रीजन का क्या, व्हाट अबाउट द अदर रीजन, ऊपर का रीजन जो है। तो लेट मी नाउ वैल्यू द अपर रीजन, तो दैट इज D0। मुझे अब देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस ही लेना है, 10% ग्रोथ रेट तो मैं यहाँ पर ले लिया। सो नाउ आई हैव टू ओनली कैच दिस डिफरेंस पार्ट, ये कितना जो ट्राइंगल है उतना ही वैल्यूएशन करना है। और फिफ्थ ईयर के एंड ट्राइंगल की वैल्यूज कुछ नहीं है, आफ्टर दैट इट इज बोथ सेम। माइनस ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म मीन्स ये मैंने 20 और 10 का डिफरेंस ही ढूंढा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म। बट हाँ, अब ये यहाँ पर कुछ बाकी है अभी, ये पीरियड कितना है वो तो मैंने कहीं पे इक्वेशन में इंडिकेट ही नहीं किया। सो अब इंडिकेट करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड विथ H मॉडल है तो H तो आना चाहिए ना कहीं पे, तो H एंड H इज इक्वल टू टाइम डिवाइड बाय 2। तो हमारे केस में अब देखो उसने क्या किया कि ये 5 साल का है ना, तो 2.5 साल का एवरेज उसने यहाँ पर टाइम को डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली मिडल में। सो लिनियर डिक्लाइन हो रहा है। सो व्हाट ही सजेस्टेड दैट कि इट इज डिक्लाइनिंग लिनियरली। और एग्जाम में H मॉडल है, आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में, तो 2 ग्रोथ रेट होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बराबर है, बट द मेजर identification in the examination is that they will indicate that growth rate is declining linearly. So once you read this term, you use H model. Barabar? Yes, clear? Yes, sir. So यहाँ पर हमारे केस में it is going to be 5 divided by 2 that is equal to 2.5. वैसे तो फॉर्मूला ही है सिंपल, बट थोड़ा उसको हम लॉजिकली समझने का ट्राई कर रहे हैं। सो व्हाट ही डिड कि 5 साल का पीरियड है तो उसको मैंने हाफ कर दिया, बिकॉज हाफ पीरियड में ग्रोथ रेट जितना लाइक अदर साइड मींस 2 साइड्स इक्वली डिवाइडेड, तो एवरेज कर दिया। ये जो 20 और 10 का मैंने एक तरह से
हाफ कर दिया टाइम के हिसाब से, सो आई हैव टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज, सम काइंड ऑफ हाफ कर दिया। ओके, अब ये फॉर्मूला में हम नंबर्स रखना शुरू करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस फॉर्मूला। सो सबसे पहले मेरा D0 10 into 1.10 and this is divided by KE, that is equal to 0.12 minus 0.10. This is my first bracket. Talking about second bracket, ये थोड़ा ध्यान से लेना है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ रेट ही है, 1 प्लस नहीं है कुछ भी। सो दैट इज वंस अगेन 10, क्योंकि मुझे तो यही डिफरेंस कैप्चर करना है आज से ही, इनटू 0.20 माइनस 0.10, ठीक है, इनटू 2.5 एंड होल डिवाइडेड बाय फिर से 0.12 माइनस 0.10। बस ये आपको एक्चुअल में 4 मार्क में एग्जाम में मिल सकता है इफ इट कम्स, तो मार्क दिस एज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। There is an equation to find out dividend yield. So how do we find out dividend yield? सर डिविडेंड मतलब करंट डिविडेंड अपॉन करंट प्राइस। Yes. That is dividend divided by market price. मार्केट प्राइस, Current market price, and it is actually D0. Technically लिखे तो current market D0 divided by P0 into 100. बराबर? So this is dividend yield. I'll say one more ratio, that is what is the payout ratio. बताओ। It's a call from the main game security. Yes. You have approved entry. चलो पे आउट रेशियो क्या होता है? नोबडी, क्या बात है? EPS upon market price. नहीं, shocked, literally shocked. So anybody who knows payout ratio? डिविडेंड अपॉन नेट इनकम। सर इसको डिविडेंड पे आउट रेशियो ले लेते हैं, बस लंबा कर देते हैं। सो इट इज डिविडेंड करेक्ट है डिवाइड बाय नेट इनकम। नेट इनकम इसको अलग अलग एंगल से लिखता हूं, दैट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक ही मिनट में आता हूं। So we explore this equation further. So dividend divided by profit after tax. This equation is also written like this. It is DPS, that is dividend per share, divided by earnings per share. So all are same. अच्छा, अब indicate क्या करता है? The percentage of profit which is distributed as dividend. So मान लो ये 60 आया, like a 60%. So what does it mean? जो भी 60% of profit is distributed as dividend. करेक्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। से अर्निंग्स पर शेयर, EPS ऑफ द कंपनी इज 20 एंड पे आउट इज इक्वल टू 40%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स इज इक्वल टू, नहीं चलो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं देता हूँ, अभी मैं आपको कुछ नया देता हूँ। से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न is equal to 6%. Return on market or return on Sensex is equal to 15%, and beta of the company is equal to 0.8. ठीक है? And finally मुझे the perpetual growth rate
perpetual growth which we can expect from the company is equal to 600. So what should be the price you should be willing to pay? तो जेनसन सिल्वा जैसा वो हो गया। हाँ, वो कैपेम का फॉर्मूला आ गया ना, यस, वो सेम ही है। RF plus beta RM minus RF, yeah. So our equation here is, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए इक्वेशन में, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. So that formula is RF plus beta into RM minus RF, right? और ये फॉर्मूला और डिटेल में जाके हमें सीखनी है as soon as we start with portfolio management as a chapter. ठीक है, अब यहाँ पर डेटा हम लेते हैं. So 6 plus 0.8, 15 minus 6. Tell me. हम्म, 13.2 सर 13.2%. ओके, अब मुझे ईपीएस और पे आउट दिया गया है. सो हाउ मच इज माय D0? सर 20 डिवाइड बाय 0.4, नहीं, 20 into 0.4. ईपीएस अच्छा 8 बस तो अब मेरा इक्वेशन आसान है. सो प्रेजेंट वैल्यू टुडे या तो प्राइस टुडे इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय KE माइनस G. सो ग्रोथ रेट मैंने आपको 6% दिया ही है. सो दैट इज इक्वल टू 8 into 1.06 डिवाइडेड बाय KE, that is equal to 0.132 minus 0.06. Now answer. Success, what is the answer? So 117.727. यस सर 117.77 Correct. So this is the market price 117. चलो सबका आंसर आ जाए तो मुझे बताइएगा. यस सर. चलो perfect. Move further with markets required return. Markets required return from the stock. इसका एक आपको एग्जांपल देता हूं. Say current market price of a stock is 80. D0 is equal to 5 and growth rate expected from the share of the company 6%. Find out market's required rate of return from the stock. That means how much is market expecting to earn from this stock? करना क्या है इसमें? चलो हमारा फॉर्मूला जो है that is P0 और PV equal to D1 divided by KE minus G. Now in this entire formula what I am supposed to find out is KE. What I am supposed to find out is KE. तो मैं क्या लेता हूँ, 80 is the price. अगर ये प्राइस 80 होनी चाहिए, market is saying that price is 80, तो how much is the market's expected return from the stock? तो D0 मेरा कितना है, 5 into 1.06, that is D1. KE मुझे ढूंढना है minus 0.06. Some mathematical job, but you can find out. Do this.
सर 0.1262। सो हमने क्या किया सबसे पहले, ये थोड़ा मैथमेटिकली मजेदार चीज है. सो के ई माइनस 0.06 इज इक्वल टू 5.30 डिवाइडेड बाय 80. ऐसा किया मैंने. तो के ई, हाँ, इसका वैल्यू कितना आता है? 5.30 डिवाइड बाय 80. 0.06625 एंड प्लस 0.06, ये जो माइनस था उसको मैंने अदर साइड ले लिया. सो फाइनली माय आंसर कम्स टू 0.1262। 625, or this can be best written as 12.65%. है कि नहीं? सो ये जो निकला वो केई है, बट ये केई कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, या मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है. नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि हाउ मच रिटर्न आई शुड रिक्वायर फ्रॉम दिस स्टॉक, ये इक्वेशन में होता है. बट यहां पर मैंने उल्टा कैलकुलेट करके क्या ढूंढा कि अगर ये प्राइस है, अगर ये ग्रोथ रेट है कंपनी का, ये डिविडेंड है, तो कितना मार्केट का एक्सपेक्टेंसी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड कंसिडरिंग दिस वैल्यू टू बी विच वैल्यू? फेयर वैल्यू. अगर ये वैल्यू मान लेता हूं कि फेयर वैल्यू है, तो हाउ मच इज मार्केटिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कंपनी, ऐसा मैंने ढूंढा. सी मैथड इक्वेशन को थोड़ा हमने उलट पलट ही किया है, बट कॉन्सेप्ट पूरा बदल गया. गेटिंग दिस? चलो अब नेक्स्ट एक चीज में रखता हूं यहां पर, दैट इज मार्केट्स एक्सपेक्टेड growth from the company. Markets expected growth from the company. चलो, सो प्राइस हम लेते हैं फिर से कंपनी की 80 ही लेते हैं. P0, that is the current market price, is equal to 80. D0 is equal to 5, and required rate of return from the stock of the company is 12%. So how much is the growth expectancy from the company? ये आपको ढूंढना है. हुआ किसी से सॉल्व? हाँ, ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं. इसका कैलकुलेशन भी काफी सिंपल है. सो आवर इक्वेशन इज P0 is equal to D1 divided by KE minus G. ठीक है, तो P0 is 80, D0 is 5 into 1 plus G divided by 0.12 minus G. ठीक है, so how I solve it? So this equation goes this way. इसको सॉरी, थोड़ा ज्यादा मैथ्स चाहिए होगा. So 12 minus G, और से 0.12 minus G is equal to 5 into 1 plus G divided by 80. Oh, ठीक है, तो अब 5 डिवाइडेड बाय 80 कितना आता है? पॉइंट 0.062। 0.0625. 0.0625. ठीक है, सो 0.0625 इंटू 1 प्लस जी मेरे पास बचा, इज इक्वल टू 0.12 माइनस जी. तो क्या ये ब्रैकेट में ओपन कर सकता हूं? सर आई एम राइटिंग इट हियर. सो 0.12 minus G is equal to
0.0625 प्लस 0.0625 जी। अब इकट्ठा कर देते, जी वाला सब इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी का अदर साइड ले लेते हैं। तो क्या होगा इक्वेशन में? सो 0.12 minus 0.0625 is equal to G plus 0.0625 G. So that is going to be 1.0625 G. है कि नहीं? अब आप इसे सॉल्व करो, लेट्स सी। सर 0.0541 5.41 common answer. Yes, sir. This is the growth rate expected from the ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। ओके, तो एज सच हम जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की बात कर रहे थे वो खत्म हुआ। सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज ओवर। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देता हूं आपको। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में वी डू हैव वन मोर थिंग, दैट इज फ्री कैश फ्लो बेस्ड एनालिसिस। फ्री कैश फ्लो, सो अब उसको हम धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर, दैट इज फ्री कैश फ्लो। इसके बेसिस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। नाउ आवर बुक इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन टाइप ऑफ फ्री कैश फ्लो, बट मैं आपको दोनों स्टाइल के कैश फ्लो सिखाता हूं, सो दैट बिकॉज दे आर बोथ इंटरलिंक्ड। सो फर्स्ट वन इज फ्री कैश फ्लो, दैट इज FCF टू फ्री कैश फ्लो टू फर्म, also known as FCFF. And another style is FCF to equity, better known as FCFE. ये दो मॉडल हमारे पास है। सो फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। बराबर। अब ये एकदम अपना टिपिकल बिजनेसमैन मेंटालिटी वाला मॉडल है कि आप क्या बेचा क्या खरीदा वो सब बातें अलग है, बट हाउ मच यू हैव अर्नड मींस कितना रोकड़ा आपके पास है वो हमें बताओ। दैट इज वेल रिफ्लेक्टेड एज फ्री कैश फ्लो, एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यूइंग कंपनी हैपेंस टू बी द बेस्ट मेथोडोलॉजी, बिकॉज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के कुछ लिमिटेशंस है। सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल सेज कि वो अप्लाई किस तरह के इन्वेस्टर करते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज एप्लीकेबल टू विच काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स? रिटेल इन्वेस्टर्स like you and me who are way happier when we get dividend, है ना? डिविडेंड मिल गया, अच्छा, तो लाइक खुश होते हैं ना। 1000 शेयर है आईटीसी के, 5 रुपए डिविडेंड मिला, लाइक 5000 डिविडेंड हो गया, साल में 4 वाले ऐसे डिविडेंड मिलेगा, मजा हो गया। So that's how it goes. But when I'm talking about a mutual fund or somebody who wants to acquire or buy the company, he is not interested in dividend discount model. क्यों? उसे पता है कि भाई डिविडेंड तो क्या है कि हम आने से चेंज कर सकते हैं। So if I am in a what you can say decision making position, I can change dividend. So dividend is not a model which we follow. We want to invest in business, not in dividends of the company. हम लोग क्या करते हैं, retail investors are investing with an intention of dividend as well,
wherein big investors have no intention of dividend. They have something else in their mind. Another thing is that कि अगर मैं आपको एक पैटर्न बताऊं, मस्त है ये. दिस इज कॉल्ड रेशे स्पेलिंग, RETCHET, right? This is called रेशे पैटर्न. दिस पैटर्न सेज कि अगर मैं कुछ इस तरह से कंपनी का डिविडेंड चेक करता हूं, लाइक इफ आई टेक अ कंपनी और कंपनी का पीरियोडिक डिविडेंड लेता हूं, तो कुछ साल तक कंपनी एक कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही थी, फिर उन्होंने बढ़ाया डिविडेंड, तो फिर कुछ साल तक वही कांस्टेंट पे किया, फिर उसके बाद थोड़ा और डिविडेंड उन्होंने बढ़ाया, फिर उसको फिर 1-2 साल सेम रखा, फिर बढ़ाया. तो यू विल सी दिस इज हाउ डिविडेंड इज फॉलोइंग अ ट्रेंड और पैटर्न विद मोस्ट कंपनीज. और कंपनी ये पैटर्न सेट करने के लिए ही दे पे अ सेपरेट डिविडेंड दैट इज कॉल्ड वन टाइम स्पेशल डिविडेंड. नाम से बताती है, इट इज वन टाइम स्पेशल डिविडेंड. उसका मीनिंग क्या हो गया कि इसको हम लॉन्ग टर्म डिविडेंड में कंसिडरेशन में नहीं लेंगे. इट इज वन टाइम डिविडेंड पेमेंट. So dividend follow a particular pattern. This pattern is known as Reshe pattern. It has to go upwards. It should not fall down. However, अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ. Does profit follow the same pattern? नो सर. नो सर. No, sir. आपको आंसर मिल गया कि क्यों डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मुझे यूज नहीं करना चाहिए. Because I am a big investor. अब हम रिटेल इन्वेस्टर नहीं है. Because dividend follow a particular trend or pattern. It is an outcome of dividend policy of the company. अगर मैं MRF को डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से वैल्यू करूं तो वो तो बहुत ओवर वैल्यू Imagine है सर. how much. बहुत मीन्स अब ये प्राइस सस्टेन कैसे होगी वही समझ में ना आए. सिमिलरली अबाउट द कंपनीज लाइक डीमार्ट, नेस्ले, तो उसका भी कुछ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता है. सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल गो थ्रू सेवरल लिमिटेशंस, राइट? तो इसीलिए बेस्ट मॉडल कौन से आइडेंटिफाई हुए, विच इज नॉट लाइक डिविडेंड इज अ मैनेजर्स और डिसीजन. तो लेट अस वर्क ऑन द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द कंपनी. ओके, तो गो बैक टू दिस फ्री कैश फ्लो टू फर्म. और एक आपको इसका पॉइंट बता रहा हूँ. अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, इसको अलग अलग एंगल से थोड़ा माइंड में सेट करते जा रहे हैं. कि से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी लाइक TCS शेयर पे 5 रुपए डिविडेंड पे करती है. यू नो द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल विथ TCS? नंबर Any ऑफ wild guess? Number of shares of 74% होल्डिंग नहीं. TCS कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? पता नहीं सर. अच्छा, TCS की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? तो सर 8 लाख करोड़. हाँ, if I can tell you the TCS market capitalization, it is 11.28 lakh crore. राइट? और इसको प्रॉपरली मैं रखूं लाइक फॉर यू, तो यू विल गेट एन आइडिया. इट इज 11,28,285 crore. That is the market value of TCS. And how much is the share price? It is 3050. तो अब इसको मैं डिवाइड करूं, ये क्या है, ऊपर क्या है, दिस इज द मार्केट कैप, एंड नीचे क्या रखा मैं, शेयर प्राइस. तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? Number of shares. Because how do I find out market capitalization? The number of shares into market price, that gives me market capitalization. बताओ. चलो, तब इसमें
रिजल्ट क्या आया हमारे पास? थ्री 70 आया रिजल्ट। 370 370 375 करोड़ शेयर सर। 375 है। ओके, चलो इसको 1128 370 के आसपास आ रहा है। हाँ सर 37 अच्छा सॉरी सर, वो मैंने 370 करंट का ले लेता सर, सॉरी। तो 370 करोड़ कंपनी के पास शेयर है। These are the number of shares, 370 करोड़ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग, और एक शेयर पे 5 रुपए उन्होंने डिविडेंड पे किया। अब बताओ 1500 करोड़ डिविडेंड हो गया सर। वो ज्यादा ही हो जाएगा। ज्यादा ही हो जाएगा। दैट इज 1850 करोड़ सर। ये डिविडेंड तो कैश में से ही पे करना होता है ना, इट इज नॉट एन अकाउंटिंग एंट्री। ये तो रोकड़ा दिया कंपनी ने। अब सोचो, isn't it a big decision? 1850 करोड़ रुपए उन्होंने डिविडेंड का आउटफ्लो दिया, कैश आउटफ्लो दिया, राइट? और ऐसा तो साल में 3-4 बार कर देते वो लोग। सिमिलरली आप देखोगे इन्फोसिस इतना ज्यादा डिविडेंड दे रही है, सब लाइक ऑल दोस कंपनीज व्हिच आर पेइंग हेफ्टी डिविडेंड, सो हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो दे मस्ट बी हैविंग। तो कई बार आपने ये शायद सुना भी होगा कि कंपनी के पास प्रॉफिट तो है तो डिविडेंड क्यों पे नहीं करती है। ये माइंड में आता है नहीं आता है। सो वी ऑलवेज से कि लाइक कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो व्हाई आरंट दे पे गुड डिविडेंड? अब री इन्वेस्ट करता है, मतलब री इन्वेस्टमेंट और मे बी कोई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के लिए रखते हो टेक ओवर्स। सर अगर मान लो कि ये डिविडेंड पे करे तो उनका डिविडेंड रेशियो बढ़ जाएगा और वो फिर उनको मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? हाँ, ये राइट, योर थॉट्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इज दिस डिविडेंड अवेलेबल इन कैश? यस सर। सर Is this profit available in cash? My answer is no. Why सर? अब देखो, अपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते। आप बाजू वाले, आपके घर के आजू बाजू वो किराने स्टोर वाला हो ना, उसको पूछेगा कि भाई पूरे साल में तेरा प्रॉफिट कितना है, तो बताएगा हाँ इतना प्रॉफिट है। कैश में है, पड़ा है? नहीं है सर। कैश में होता है, कल किसी को लेना होता है सब कुछ बाकी मतलब। होता है। किसी के बिजनेस में रोटेट होते रहते हैं, राइट और नॉट? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट इन कैश. Profit is not in cash, it is actually an accounting number. बराबर कि नहीं? यस सर। It's an accounting number. दूसरा, लाइक अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट देखता हूं, सो कंपनी की बैलेंस शीट में मेरे पास एक हेड होता है, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. इज इट अवेलेबल इन कैश? यस सर। Yes sir, it should sir. be. Answer is no. Because जब प्रॉफिट ही अकाउंटिंग नंबर है, तो ये कैसे कैश में हो सकता है? ये भी तो अकाउंटिंग नंबर ही है ना।
तो सर देन हाउ कैन वी से इट इज कॉल्ड रिजर्व? मैं तो चलो वो रिजर्व को छोड़ो, तो प्रॉफिट कैश आफ्टर रिजर्व टैक्स ही अलग होता अकाउंट। है ना, कैश रिजर्व अलग होता है, हाँ, फिर कुछ अलग से रिजर्व रिजर्व। अलग होता है। बाकी रिजर्व्स एंड सरप्लस तो अपने आप में अकाउंटिंग नंबर है। और अगर आप, ये तो लायबिलिटी साइड होता है कंपनी की, बराबर। असेट साइड देखो, यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस इतना बड़ा मस्त नंबर है, और सामने तो कैश अकाउंट में कुछ है ही नहीं उतना ज्यादा। हम धीरे धीरे बेस बनाते जा रहे कॉन्सेप्ट का, कि हम जिस तरह से चीजें देखते हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है। सर तो पहले डिविडेंड के लिए तो मतलब कैश पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा। प्लान करती है कंपनी कि हम नेक्स्ट क्वार्टर के एंड पे कितना डिविडेंड पे करना है, तो उसके लिए कैश जमा करते हैं वो लोग। हाँ ऐसा नहीं है कि चलो डिविडेंड पे कर देते, प्रॉफिट है ही पड़ा हुआ है दे दो। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब हम सेल्स से शुरू करते हैं। सेल्स कंपनी की दो तरह से होती है, कैश एंड क्रेडिट। बट हाँ, कैश फ्लो का बिगेस्ट जनरेटर इज सेल्स। अब सेल्स में से कंपनी उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करती है, फिर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करती है, एंड फाइनली वी अराइव एट अ नंबर दैट इज कॉल्ड EBIT. This is called operating cash flow, that is earning before interest and tax. उसमें से हम इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, टैक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी फाइनली अराइव एट अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये कंपनी का एक्चुअल में देखो तो P&L है, बराबर। Can you find out some of the expenses which are incurred by the company which do not form any part in profit and loss statement or income statement? सर सॉरी I'll repeat my हाँ yes sir. सर फिर से पूछो, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हाँ, इनकम स्टेटमेंट है कंपनी की ये, राइट, जो हमने बनाया, सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड फाइनली अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट। अब ऐसे कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, दैट कंपनी स्पेंडिंग मनी which is not forming a part in income statement, but कंपनी ने खर्चा तो किया है, it is directly reflecting in the balance sheet of the company. सर लैंड या फिर कुछ असेट परचेज की है। Correct. So first is the capital expenditure. कंपनी ने प्लांट, मशीनरी या लैंड परचेस की है, कुछ असेट परचेस की है, वो कभी भी इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इट इज डायरेक्टली गोइंग टू बैलेंस शीट, बराबर। दूसरी एक चीज बताता हूं, हाँ, कंपनी ने के वर्किंग कैपिटल किया है, लाइक इन्वेंट्री बढ़ाई या तो क्रेडिट सेल्स बढ़ाई, तो वो भी तो वर्किंग कैपिटल में होता है, तो कंपनी का पैसा तो लगा उसमें, बट वो कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं होता है। चलो, देयर इज वन मोर थिंग, कंपनी लोन चुकाती है, व्हेन कंपनी इज रीपेइंग मनी, तो लोन पेमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रिंसिपल पेमेंट बैलेंस शीट। वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जा रहे हैं, बट पैसा तो जा रहा है ना कंपनी से। अच्छा, और एक चीज, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में ऐसी चीजें मुझे ढूंढ के बताओ कि हमने खर्चे में डाली है, बट सही में तो वो खर्चा है ही नहीं। डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन है।
तो अब आपको पूरा झोलम झोल लगने लगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, हम तो प्रॉफिट ये सब अभी तक देख रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ये तो बहुत बड़ा गफला है, राइट? तो इसीलिए लाइक अगर मुझे कंपनी बाय करनी है तो प्रॉफिट प्रॉफिट छोड़ो, वो नहीं देखना है मुझे, बिकॉज वो तो सब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी पे डिपेंड करता है, डेप्रिसिएशन आपने मारा है, क्या खर्चे डाले हैं, राइट? कितना आपका अमोर्टाइजेशन चल रहा है, कितना राइट ऑफ चल रहा है, कि गुडविल गुडविल है तो उसको भी डाल देते हैं कि राइटिंग ऑफ गुडविल, ये सब चीजें, तो वो सब बहुत सारे सब्जेक्टिव कंपोनेंट से चलते हैं। उसके साथ कंपनी के पास कुछ रिकरिंग इनकम होती है, कुछ नॉन रिकरिंग इनकम होती है, तो बहुत गड़बड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आफ्टर लॉट ऑफ लोचा। तो फाइनली मैं देखूंगा ये सब छोड़ो, कैश फ्लो बताओ ना, कंपनी के पास रोकड़ा कितना बचता है वो बताओ, वही, क्योंकि वही मिलने वाला है, तो मुझे वही जानने में इंटरेस्ट है। बाकी सब अकाउंटिंग बहुत अच्छे से एनालिस्ट हैं, वो सिर्फ कैश फ्लो से ही मतलब डिजाइन करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करें ना करें। यस यस, सी मैंने बोला म्यूचुअल फंड वाले हैं या कंपनी मुझे बाय करनी है, तो वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो वैसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में चले ऐसा है ही नहीं, बट कैश फ्लो ही देखने होते हैं, बिकॉज एक दुकान आप सोचो, एक किराने वाला भी कैश फ्लो पे काम करता है कि नहीं? सर तो किसी एंड ऑफ किसी कंपनी का कैश फ्लो अगर हमको मतलब ढूंढना है तो कैसे करें? बस अब घुमा फिरा के ये परफेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो अब हम वापस जाते, यही हमें सीखना है। दो तरह के कैश फ्लो हमें ढूंढना सीखना है। प्राइमरी लेवल पे हम सीख जाते हैं ऑब्वियसली, एनालिस्ट लेवल पे तो थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ता है, वी हैव टू डू फर्दर डिटेल, बट हाँ, हैविंग टॉट इक्विटी वैल्यूएशन अ लॉट इन सीएफए प्रोग्राम, राइट, फाइनल कंक्लूजन वही है कि ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है जो आपको क्या प्राइस होनी चाहिए बता दे। ऐसा कोई मॉडल सबसे पहले, it is just what we are doing is we are what I can say is refining our approximations. Getting this? We are actually refining our approximations. But बाकी तो जो भी है वो कंपनी चलाने वाले के ही हाथ में है। एंड ऑफ द डे उसका दिमाग घूम गया तो पूरा आपका एनालिसिस गया। सिंपल है, राइट? सो हम हमारे assumptions जो approximations है उसको थोड़ा रिफाइन करते हैं, एंड यस, बेटर वैल्यूएशन मॉडल्स आर कैश फ्लो मॉडल्स। तो अब हम गिनना शुरू करते हैं। तो आई होप दैट वो स्टोरी मैंने आपको पूरा कैश फ्लो का सेट करके दिया, आपको काफी कुछ एनलाइटन कॉन्सेप्ट हुए कि नहीं नहीं ये बराबर है, दिस इज गोइंग राइट। और कुछ चीजें हमको और भी जानने मिली जो आप अपने दोस्तों को परेशान कर सकते हो कि प्रॉफिट कैश में होता है, रिजर्व कैश में होती है। मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला जो हम कंप्यूटेशन शुरू करते हैं दैट इज फ्री कैश फ्लो, दैट इज FCF टू फर्म। फ्री कैश फ्लो टू फर्म टॉक्स अबाउट कैश अवेलेबल टू all the capital providers, of the firm। और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, not smaller questions like find a free cash flow of the company, or else आपको फ्री कैश फ्लो गिन के दिया हो और उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करना है। two types of questions। Okay, so we first of all find out कि company has to generate revenue। revenue का source क्या होता है? Sales of the company। From this, company has to
मेक सेल्स हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी उसके है सब आ गया उसमें। फिर सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, so company meets all the expenses. Company also has to make payment of taxes, और उसके बाद जो बचा that is the cash flow available to the providers of the capital of the company. ठीक है, बट और भी कुछ चीजें तो रही यहाँ पर। देयर आर सम मोर, ये तो हमारा नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट वाला हुआ, बट देयर आर सम मोर आउटफ्लोस associated with the company. First is that investment in fixed capital assets, right? FCA means fixed capital assets. It also requires investment in working capital. So revenue, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए, टैक्सेस पे किए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जो बचा दैट इज अवेलेबल टू द कैपिटल, ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो अब इसको मैं गिनूंगा कैसे, हाउ वुड आई फाइंड आउट? तो कंप्यूटेशनल पार्ट सेज दैट कि चलो मैं करता हूं सब आसान, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद होता है, उससे पहले आंसर करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मैंने ढूंढा कंपनी का, वो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद होता है या उससे पहले का होता है? सर पहले का होता है। नहीं, बाद you can का check होता है। this. सर टैक्स ही होता है ना, This मतलब इंटरेस्ट भी आ गया उसमें। तो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद का होता है। सो इंटरेस्ट एंड टैक्स बोथ पेड, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस मैं करूंगा इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी, बिकॉज ऑल दी कैपिटल प्रोवाइडर्स में डेट वाले भी आ गए, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि अगर मेरे पास एडिक्वेट कैश अवेलेबल होती है नहीं होती है टू पे दी कैपिटल प्रोवाइडर्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी plus depreciation and other non-cash expenses. कुछ राइट ऑफ चल रहा है, कुछ अमोर्टाइजेशन चल रहा है कि जिसके पीछे मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया है कैश में, बट इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, that will actually give me the amount of cash available with company. सर हमने इंटरेस्ट That will actually give me, because मुझे ढूंढना है। हाँ, I got your question कि हमने इंटरेस्ट को ऐड क्यों किया, है ना? वही है ना चिन्मय भी आपका क्वेश्चन? यस। तो इंटरेस्ट को ऐड करने के पीछे का लॉजिक क्या है? मुझे ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए कंपनी के पास कितना कैश फ्लो बचा वो ढूंढना है। सो ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स ऑफ द कंपनी आर हु? सो इक्विटी शेयर्स प्लस डेट होल्डर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, ये सब के सब कैपिटल प्रोवाइडर्स है कंपनी के। तो मुझे इन लोगों के लिए कितना पैसा बचा वो ढूंढना है कैश में। इसीलिए मैंने ढूंढ लिया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश भी मैंने ऐड कर दिया, उसमें जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया वो भी कर दिया। सो दिस नेट अमाउंट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? कैश फ्लो, कि भाई बिजनेस में कैश फ्लो कितना जनरेट होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल। करेक्ट। अब इसमें से नहीं, अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेबल कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए, इक्विटी प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं।
सर एक चीज कंफ्यूजन है बस, मुझे ये कंफर्म करना है, जो हाँ। हमने सेल्स किया है, हमने प्रॉफिट निकाला है, वो तो हमने जो क्रेडिट पे भी माल दिया है उसमें भी है, वो हमें कैश रियलाइज नहीं हुआ अभी, तो उसको भी मैंने ऐड कर लिया है कैश फ्लो में, एज्यूमिंग कि वो मेरे पास कैश आ गया है। हाँ, अब उसके लिए एक मस्त क्वेश्चन आपने पूछा, जबरदस्त, बी हैप्पी टू आंसर। ये मैंने रखा वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स व्हाट? सबसे हाँ, पहले मेरी inventory। इन्वेंटरी, इतना माल मेरे पास पड़ा हुआ है, आइदर रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स। दूसरा मेरा इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल में कितना हुआ, रिसीवेबल मींस गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। एंड लास्टली आई हैव कि मैंने कितना कैश बिल्ड किया अपने पास। ठीक है, सो जो आपका क्वेश्चन था कि भाई जो क्रेडिट पे बेचा वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है, तो नेटिंग इफेक्ट मैंने दे ही दिया है उसका। जितना क्रेडिट पे आपका ओवरऑल माल पड़ा हुआ है बेचा हुआ, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट कर दिया है। राइट और नॉट? पर सर पैसा तो मेरे पास नहीं आया, तो मैंने कैश फ्लो में कैसे ले लिया, मतलब मेरे हाथ में तो नहीं आया। कौन सा? जो क्रेडिट पे बेचा था। नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि वो सब्ट्रैक्शन में डाला है ना। अच्छा ओके सर। हाँ, वो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज माय सब्ट्रैक्शन। अच्छा राइट राइट सर, राइट, यस यस सर। सो ये मेरे पास पूरे समय या पर्टिकुलर पीरियड में कैश फ्लो इतना जनरेट हुआ। डन। अब ये किसके लिए कैश फ्लो है? ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स। बट हम तो प्रोवाइडर्स में कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। सो लेट अस फाइंड आउट FCF टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब इसमें फिर से हमारा कॉन्सेप्ट तो वही हुआ कि भाई कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की, उसमें से कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस पे किए, उसके बाद कंपनी ने टैक्स भी पे किया। देन फर्दर कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड कैपिटल, कंपनी हैज पेड मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। आई हैव टू ऐड वन मोर थिंग हियर। अब और एक चीज भी मुझे खर्चे में डालनी है ना यहाँ पर आउटफ्लो में। टू डेट होल्डर्स। अब डेट होल्डर्स में दो चीजें, एक इंटरेस्ट पेमेंट, सॉरी माय वॉइस मस्ट हैव क्रैक्ड। डेट होल्डर्स में दो चीजें, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, एंड तीसरा कंपोनेंट है फ्रेश बोरोइंग। डेट सर्विसिंग। मजा आ गया। हाँ, तो अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं फिर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट तो अब मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें मैं ऐड क्या करूंगा, तो डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस। राइट, ये हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी कैन हैव एन आइसोलेटेड क्वेश्चन कि जहां पर हमें ये कंपोनेंट दिए गए हो और उसको प्लस माइनस करके कैश फ्लो ढूंढना पड़े, हम करेंगे, दैट विल डू ऑन वेडनेसडे। माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस डेट रीपेमेंट प्लस बोरोइंग्स। पैसा आ गया तो फाइनली वो हम लाइक बोरोइंग में दिखा देते हैं। सो दैट इज व्हाटएवर इज दे बोरोड एंड डिफरेंस इज नोन एज कैश फ्लो। अच्छा सॉरी, एक चीज और रह गई अभी इसमें। अगर मान लो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है, वैसे नॉर्मली होते नहीं है लाइक इन ऑल दिस क्वेश्चंस, बट हम प्रूडेंस के लिए ऐड कर ही देते हैं। तो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों प्रेफरेंस शेयर्स को तो इंटरेस्ट ही पे करना होता है, डिविडेंड, एंड फाइनली अगर
तो उनका दोनों ले, दैट इज द डिविडेंड एंड रीपेमेंट बोथ। एंड फाइनली जो हमारे पास बचा दैट इज कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट कंपनी का, अब ये मास्टर स्टेटमेंट आप सुनो बहुत ध्यान से, प्रॉफिट कंपनी का नेगेटिव हो सकता है। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैन बी नेगेटिव बट कैश फ्लो कैन नॉट बी नेगेटिव। बराबर कि नहीं? So loss making company can survive, it has got positive cash flows. Yes, But sir. positive profit after tax company cannot survive if it has negative कैश फ्लो। मजा आ गया ना? राइट, सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके वैल्यूएशंस जो है, राइट, सो थर्सडे माय एजेंडा इज टू लाइक कंप्लीट इक्विटी पार्ट एंटायरली बिकॉज ये हमारा सबसे हैवी पोर्शन है।